सो 3 challenges, I'll just give you a hint. जैसे कि मैन पावर चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, काफी पेमेंट डिले के चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ समय से बिजनेस डेवलपमेंट एक तरह से रुक गया है, राइट? बिकॉज क्लाइंट डिसीजंस होल्ड पे रखा है, क्लाइंट ने जो पुराने प्रोजेक्ट थे उनको होल्ड पे रखा है, कॉस्ट कटिंग का टाइम है, वो एक चैलेंजेस है। कंप्लायंसेस इज द चैलेंज, राइट? इन्हीं लाइंस में हम देखेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपके नजरिए से 3 बड़े चैलेंजेस क्या है, राइट? सो टू स्टार्ट विद हम स्टार्ट करेंगे राधा कृष्णन, प्लीज योर व्यूज। I'm Radhakrishnan. I am from Kerala. My agency name is Secusys. One main issue is that the wages issue. Right. Because nobody caring about the wages, because there are some government norms regarding basic wages, but we are providing them. Nobody follows them. So what happens? Our standards we cannot manage. We cannot keep our company standards and the guard standards also. Correct. That is the one point I observed. Great. So when you talk about wages, exactly there are 2 type of clients mostly. The one who go for compliance, the other one who don't go for compliances. So how is the market in Kerala? You know, आपको compliances वाले ज्यादा मिलते हैं, non compliances वाले ज्यादा मिलते हैं? नहीं, compliances इसलिए है क्योंकि wages कम है, तो उसी स्टैंडर्ड का बंदे नहीं मिलता है। करेक्ट। और उनका पर्सनालिटी भी स्टैंडर्ड भी नहीं होते, तो कंप्लेंट स्वाभाविक है, कंप्लेंट्स तो होगा ही है। राइट, दैट्स द प्रॉब्लम। राइट। एंड यस, मेरा सजेशन ये है, हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे हो या कहीं भी हो, स्टेट लेवल पे हो, कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए वेजेस का, उसी के नीचे हम लेना नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स लेना नहीं चाहिए। The thing is, I think so. Srinivasan sir, you can put some light if you want, like. Yes. I think English and Hindi I'll combine it. Yes, 100%. Yes. मेरा हिंदी काफी, even I am from Hyderabad. Yes. My Hindi is somewhat Urdu mixed, so it's difficult sometimes to. So what Radhakrishna said is right. अपने को अभी we are on a pan India basis. And we need 2 most important things in the fraternity. One is a common agreement. वैसा नहीं रहना चाहिए कि एक एग्रीमेंट एक तरीका रहो। अगर मैं कहीं 10,000 का कोटेशन दे रहा हूँ, दूसरे एजेंसी आके 8,000 में दे रहा, दैट इज द आई थिंक यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एंड द अदर यूनिवर्सल प्रॉब्लम इज इवन वी आर नॉट मेंटेनिंग समटाइम्स द ESI एंड EPF। अरे चलो इन्हें पैसे दे रहा, सो वी आर लुकिंग एट आवर कंफर्ट, आवर ओन कंफर्ट जोन। So if we can work on a common agreement kind of a thing, where the agreement will be common, and those who are into this industry, they need to help. If suppose Radhakrishna is there in Kerala and he wants to do a particular new client, and suppose someone has already had a pain with that particular client, he needs to share in the group. मैं ऐसा नया चीज आया है, ये बंद वहां पे ये कर रहे, this particular agency is doing, I am jumping into that, any problem. So we need to have a common platform. We are not who are all in the group, it always happens when we start a group for a common cause, for a good thing, it starts slowly. We cannot expect all will come at the same time, because I have seen so many groups in recent times. So the most important thing is if we work on a collaborative basis, not on a competitive basis. राधा कृष्णा भी सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मैं भी सिक्योरिटी कर रहा हूँ, दीपक पांडे भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, राजू भी कर रहे हैं, अशोक जी भी कर रहे हैं। मगर अपने अंदर कॉम्पिटिटिव कभी भी नहीं आना, इट्स ओनली कोलैबोरेशन। अगर मेरे को कोई क्लाइंट मिला, आप केरला में करते क्या होता, हाँ बोलता हूँ मैं, हाँ मैं करता हूँ, मेरा राधा कृष्णा बोल के मेरा दोस्त है, वहां पे करता हूँ। सो दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या सोचते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द बिगर प्लेयर्स, इफ सपोज somebody is having very big players, they need to support these small players, right. अगर
नमस्ते। अगर कोई किसी के पास में इन लोगों 5-6 जने का नहीं करेगा, there are so many agencies like that, and Correct. so that they can support the the agencies who are in this field new, and they can we also should have the SOPs, the systems, the processes what a security agency needed. All these we will discuss slowly. Right, That's right, what I think right. your thought process, if I'm Yes, not wrong. yes, yes, 100%. Yes, ओम प्रकाश जी, योर व्यूज ऑन दिस, आपको क्या लगता है ये चैलेंजेस, इसके अलावा भी अगर और चैलेंजेस हैं जो विच यू वांट टू शेयर विद द फोरम? चैलेंजेस तो सर सारी सारी इंडस्ट्री में ही है, Right. अपने वाले में अलग से Right. नहीं है, सारी में ही है। वेजेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के ही मिलेंगे। सब्जेक्ट है, राइट। इसी में अपन क्या बेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, कैसे अपने कंप्लायंस पार्ट को पूरा करते हुए अच्छे क्लाइंट की तरफ जा सकते हैं, इन चीजों पे अपने फोकस करने का। बाकी चैलेंजेस तो रहेंगे ही। ओके, यस। वेजेस इज अ स्टेट सब्जेक्ट बेसिकली। हर स्टेट का अलग इकोनॉमी होता है, पर कैपिटल इनकम होता है, तो सेंट्रली वी कैंट हैव वन वेज फॉर ऑल ओवर इंडिया। बहुत ही डाइवर्सिफाइड है इंडिया, कुछ स्टेट्स अच्छे डेवलप हैं, कुछ और डेवलप कर रहे हैं, और कुछ आर नॉट दैट मच डेवलप। नहीं तो हम तो ये तो गिवन नाम है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ तो और मिनिमम वेज तो बहुत कम है क्या। राइट, राइट। इसमें अशोक जी आपका क्या कहना है वेजेस को लेके, और मे बी एनी अदर पॉइंट आप रेज करना चाहें जो सिक्योरिटी एजेंसीज को चैलेंज दिख रहा है ये टाइम पर? अशोक जी, राजू जी, विकास जी। लेट्स ऑल पार्टिसिपेट। यहाँ पे हमने सिस्टम ऐसा नहीं रखा कि कोई एक स्पीकर बोलेगा सब सुनेंगे, वो बहुत हो जाता है कई सारे फोरम्स पे। यहाँ पे फ्रीली वी हैव टू कीप आवर व्यूज, जहाँ पे हम अपने स्तर पे बताएं कि हमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कशन के एंड में हमें कहीं ना कहीं वो आइडिया, वो मोटिवेशन क्लिक होगा, जो हम वापस लेके जाएंगे और पूरे हफ्ते में अपने एजेंसी में कुछ इम्प्लीमेंट या कुछ इम्प्रूव करने का सोचेंगे, राइट। विकास जी, राजू जी, अशोक जी कोबरा सिक्योरिटी से भी हैं, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। द टॉपिक इज टॉप 3 challenges faced by security agencies। एक हो गया वेजेस, तो राधा कृष्णन जी ने रेज करा है। apart from that I think second major the problem, ओम प्रकाश जी, अच्छा ठीक, मैं मिक्स करूंगा हिंदी इंग्लिश। प्लीज तो, नो दोनों समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा ठीक है। मेरा हिंदी थोड़ा राजस्थानी की हिंदी से बहुत फर्क रहेगा वही मेरा बड़ा प्रॉब्लम है। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कि सडन ड्रॉप आउट इन द सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। जो लॉकडाउन में एमएनसीज क्लोज बंद हो गए हैं, कई ऑफिसेस बंद हो गए, कई जगह कॉस्टिंग के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाल लिया गया है, कई बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाल लिया गया है कि एटीएम्स में सिक्योरिटी गार्ड का जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन विल प्रोबेबली हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉपिंग डाउन दी मैन पावर, अगर सिक्योरिटी हो जान दो, हाउसकीपिंग हो जान दो। तो मेरा एक सजेशन है सभी से कि we need to think about diversifying our activity in the facility management। खाली हम लोग अभी तक सिक्योरिटी कर रहे हैं, अब कोशिश करिए कि हाउसकीपिंग भी करने का। अगर आप हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी का कर रहे हैं, अगर आपके अगर राजस्थान में हो, केरला में हो, हैदराबाद में हो, कहीं भी हो, थोड़ा ऐसा नया अपॉर्चुनिटीज है फैसिलिटी के अंदर, तो हम लोग कोई भी आइडिया दे सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। राइट। सो ये स्टॉक मार्केट में भी होता है, हम सारा इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में नहीं डालते, हम डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि एक कंपनी अगर बंद भी हो जाती है या फिर मार्केट डाउन होता है, तो यू हैव दैट लिवरेज कि हम अपने बिजनेस को होल्ड कर पाए। हम तो तीन सेक्टर कवर करके चलते हैं सर। सिक्योरिटी है, हाउसकीपिंग है, और मैन पावर भी करते हैं। मैन पावर, राइट, फेयर इनफ। ये स्ट्रेटेजी काफी काम करता है। यस ग्रेट। सो सेकंड, आपने बोला डाइवर्सिफाई करना है, हम बहुत सारे लोग सिक्योरिटी से प्रोवाइड करते हैं, राइट। राजू जी, आपका इस पे क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि और क्या चैलेंजेस है, या इस पे आपका क्या व्यूज है?
आप म्यूट पे हो, यू आर ऑन म्यूट सर। आपने मोबाइल से लॉगिन करा वहां पे यस अभी बोलिए। No, okay, sir. यस I am यस Raju 100%। from Clarion India Private Limited, the Yes. Bangalore based run. I started 2017. यस So जो राधाकृष्ण सब केरला से बताए थे, so मैं केरला भी काम किया था सर। So मिनिमम वेजेस बहुत फर्क है, जो क्लाइंट तो कहीं एग्री नहीं होता है। राइट तो यही मेरे को मिनिमम वेजेस चाहिए, नहीं तो हम लोग सर्विस नहीं है तो लोग दे आर नॉट एग्री। उन लोग मिनिमम वेजेस कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जितना रेट दे रहा है तो उतना रेट दिए, तो तुम नहीं है तो दूसरा है। तो इसमें क्या है ना सर, हम भी क्लाइंट से भी फाइट नहीं कर सकते हैं, हम भी सर्विस करना है तो क्लाइंट से भी हम लोग लेना कुछ ना कुछ करके देना ही है। तो प्रॉब्लम हो रही है कि अपना तरफ से होता है, तो जो भी कंप्लेंट इमीडिएट आते है तो लेबर इंस्पेक्टर आए तो हम भी पे करना पड़ता है। क्लाइंट तो देर नॉट बॉदर, बोलते मैं इतना रेट दे रहा हूँ, इतना रेट में तुम सर्विस करना है तो करो, नहीं तो जाओ बोलते। तो इसमें हम लोग क्या आना, सो किसी के साथ भी क्लाइंट से फाइट नहीं कर सकते। इसमें हम लोग के आइडिया चाहिए, ऑल इंडिया प्राइवेट एजेंसी क्या है ना, जो भी क्लाइंट से हम जा रहा है तो एक ही सिक्योरिटी रहना चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए इसमें। तो वेजेस दूसरा, सो एजेंसी का आप नहीं है तो मैं गया तो दूसरा गया, तो इसमें क्या होता है ना सर, ये डिपेंड हो जाता है, नहीं आप नहीं है तो हम करेंगे तो कम रेट में। करेक्ट करेक्ट, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। पर अगर ऐसा हो गया, समझिए एयरटेल और जियो ने सेम प्लान लॉन्च कर दिया, सब दोनों का प्राइस सेम है। सेम है, करेक्ट। तब क्लाइंट लाने का मार्केटिंग कैसे करेंगे आप? क्या बेसिस पे क्लाइंट एजेंसी ए या एजेंसी बी चूज करेगा, या ऑप्शंस कैसे चूज करेगा जब सबका रेट सेम है? इसमें क्या ना, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। तो कोई सर्विस अच्छा है, देव फीडबैक लेता है तो अदर एजेंसी से जो भी है, तो सर्विस भी देखता है। So how we will behave around talking also, how we will maintain a relationship on clients. Some other service कर रहा है तो उसके साथ भी हम लोग फीडबैक लेंगे ना सर। तो एक एक क्लाइंट क्या सोचते हैं, रेट नहीं सोचता है वो, दे वांट गुड सर्विस। करेक्ट, सर्विस सोचता है, पैसा के जाओ भाई, पहले मेरे को अच्छी सर्विस दे दो। करेक्ट, तो ऐसा सोचता है। इसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, ये एचआर का और ये कंप्लेंट्स का क्या है ना, एक एक क्लाइंट कम देता है, एक एक क्लाइंट ज्यादा देता है। एक क्लाइंट मिनिमम वेजेस फॉलोअप करता है, एक क्लाइंट मिनिमम वेजेस फॉलोअप नहीं करता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमको प्रॉब्लम हो रहा है एजेंसी को, वो कंप्लेंट्स नहीं भरा है तो हम कुछ भराना पड़ता है। सो टाइम पे पेमेंट नहीं आता है, सो जीएसटी पे करना, ईएसआईपी बान टाइम पे करना। सो क्लाइंट तो पेनाल्टी तो पे नहीं करते, वो तुम पेनाल्टी देंगे तो कैंसिल करेगी एजेंसी को। करेक्ट है, करेक्ट। तो इसके अलावा हमको कुछ आइडिया चाहिए कि हम कैसा कर सकता है इसके ऊपर। वो डिस्कशन से निकल के आएगा मोस्टली, जैसे कि एक मुझे जो सोल्यूशन दिखता है कि हम कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होती है। वी आर द एजेंसी, वी आर द थर्ड पार्टी, वी आर लाइक अ लिंक बिटवीन द लेबर, द सिक्योरिटी गार्ड्स एंड द कंपनी। तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स को अबाउट कंप्लायंसेस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रिपरकशन क्या है। मतलब अमाउंट छोटा दिखता है, बट जब लायबिलिटी और कंप्लायंसेस की आती है दैट इज मल्टीफोल्ड, राइट। तो वो लेवल पे वी हैव टू डिस्कस विद द क्लाइंट। और जिनको लॉन्ग टर्म करना है, लाइक आई थिंक सो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के पहले नॉन कंप्लायंसेस बहुत था सबके पास, कंपनीज के पास भी बहुत सारा था। एग्जैक्टली सर। नाउ एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन, या बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही है। तो आई थिंक सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप हो रहा है तो कंप्लायंसेस ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का नेट बढ़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो सकता है, राइट। एंड सेकंड, अगर हम एक एक क्लाइंट समझता है, एक एक क्लाइंट तो दे नॉट बॉदर्ड सर, वो सब मेरे को झंझट नहीं लेना यार, तुम जो करना है वो कर लो, राइट। तो और एक मेरा सजेशन है, यस, और एक मेरा सजेशन है सर, जो ऑल इंडिया अपने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का अपने टीम लिया है, तो अदर स्टेट टू अदर स्टेट अपना एजेंसी में थोड़ा हेल्पिंग चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए, राइट राइट। वो ग्रुप है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, ये करना है क्योंकि सर मेरे को रिसेंटली मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी मिला, सो मेरे को यहाँ से जाने के लिए मुश्किल हो रहा है, थोड़ा हेल्प ले सकता है। सो गोवा में हेल्प ले सकता है। ये कोरोना वजह से ना हम लोग कहीं भी ना जा नहीं पा रहे सर, ट्रैवलिंग इशू है, राइट राइट, करेक्ट।
तो इसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस करके इसमें थोड़ा हेल्प लेना चाहिए। अगर वो खुद करना है तो हम सपोर्ट ऑन दैट। ग्रुप में देयर आर मेनी मेंबर्स जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, वो स्टेट से कौन से स्टेट से हैं, आप उनका प्रोफाइल देखिए, उनके साथ उनके कॉल पे बात करिए, एंड स्लोली ग्रेजुअली आप ट्रस्ट बिल्ड करके उनका बैकग्राउंड आपका वो वेरीफाई करेंगे, उनका आप करेंगे, एंड देन यू कैन टेक द डिस्कशन। तो अभी 2 प्रॉब्लम हमको निकल के आया है, एक वेजेस का है, दूसरा कंप्लायंसेस दिख रहा है। करेक्ट। एंड कंप्लायंसेस में आई पर्सनली थिंक कि वर्किंग कैपिटल मैनेज करना एक स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग नहीं समझते कि कंपनी चलाने के लिए 2 तरह के फंड लगते हैं। एक स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप कैपिटल बोलते हैं जिसको, जो हम लोन लेते हैं बैंक से, एक होता है बिजनेस को रन करने के लिए जो ऑयलिंग बोलते हैं। वहां पे वी हैव अ बिट ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पेमेंट आएगा हमारा 60 डेज में, 90 डेज में, 30 डेज में, और हमें सैलरी पे करना है 10 डेज में, 15 डेज में। करेक्ट। इफ हम आने वाली मीटिंग्स में उस पर इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल को टेक्निकली कैसे मैनेज कर सकते हैं, सो दैट ये जो फंड का शॉर्टेज होता है कंप्लायंसेस पे करने के लिए, वहां पे हमें हेल्प मिले। राइट, वेरी वेरी गुड डिस्कशन। और ऐसे क्या पॉइंट्स है ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि और क्या चैलेंजेस है माइक्रो लेवल पे, इट्स नॉट माइक्रो, बड़े इंडायरेक्ट लेवल पे नहीं, हमारे एजेंसी के लेवल पे हमें क्या चैलेंजेस हो रहे हैं? इसकी चर्चा तो इस सब बार बार यही हो रही है। दिक्कतें तो सारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट की हैं, लेबर मैन पावर की भी है, फिर पेमेंट का है, कंप्लायंसेस है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमें आगे जाना है। तो इन चैलेंजों को तो अपने को कैसे न कैसे तो ब्रेक थ्रू करना ही है ना। मैंने कहीं सुना था चैलेंजेस है इसलिए बिजनेस है, और इंडिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं इसलिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो बिजनेस है, बिजनेस तो चैलेंज है ही नहीं ना। चैलेंजेस है, लेकिन हमें अपनी थॉट को तो सर चेंज करके हमें कंप्लायंसेस पार्ट वाले पार्टियों के पास में, हमें एनएमसीज के पास में जाना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हम आपको बेटर दे सकते हैं। जो एनएमसी नहीं दे सकती, मैं स्टेट में बैठा हुआ आपसे भी उससे बढ़िया दे सकता हूँ, बढ़िया सर्विस दे सकते हैं। और सर्विस देनी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग पार्ट करना पड़ेगा, अपने कंप्लायंसेस पार्ट में उसको कंप्लेन नहीं आने देंगे, तो वो ट्रस्ट करके दूसरे को हमारे को अपने को रेफर करेगा कि भाई यार ये एजेंसी ठीक है, इसको ले सकते हो, तब जाके हम इसको आगे निकल सकते हैं। अदरवाइज तो जो बिना लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम कर रही है, एजेंसियां काम कर रही है और कर रही है, वो कितने में ही ले लेती है, उनको क्या दिक्कत है? फर्क नहीं है उनको ना पीएफ करना, ना ये सही करना, ना कोई कंप्लायंसेस पार्ट करना। अब उनको तो 1000 बच्चे, 5000 बच्चे, 2000 बच्चे, और गार्ड को तनख्वाह नहीं भी मिली तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम अगर हम अपने ऑफिस लेके बैठे हुए हैं, हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हमें तो किसी गार्ड की तनख्वाह थोड़ी रखनी है, हमें तो अपने काम को आगे बढ़ाना है। करेक्ट। और वो कंप्लायंसेस के लिए भी गार्ड को, आज मोबाइल के अंदर इतने ऐप चले हुए हैं जो बार बार पीएफ का ही मैसेज देते हैं उसको, जो आदमी सर्च करता है वही फेसबुक आगे क्या रखता है, वही चीजें रखता है। करेक्ट। तो अब वो तो अपने पास पीएफ भी मांगने आएगा, ये सही भी मांगने आएगा, अपन उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो धीरे धीरे एक आदमी को तोड़ता जाएगा अपने से। तो इसके लिए तो अपने को यही है कि भाई अपन कॉर्पोरेट क्लाइंट की तरफ भागें, उनको जस्टिफाई करें, अपनी ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग करें, अपने मोबाइल अटेंडेंस को, मतलब उसकी बात को सुने, सर्विस को दें, और कंप्लायंस पार्ट जो वो अपने को दे रहा है वो 100% करके दें, तो वो अपने को ट्रस्ट करे और आगे बढ़े। यहाँ पे मतलब क्लाइंट चूज करने का भी ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं कि मार्केट में जहाँ कोटेशन है हमने नॉन कंप्लायंसेस भी साइट ले ली। इट्स नॉट लाइक कि शॉर्ट टर्म जो करेगा वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। तो अगर हम क्लाइंट को कंसल्ट करेंगे प्रॉपर, तो वो हमारी वो कंसल्टेंसी की रिस्पेक्ट करेगा कि हम फ्रीली बात करें, हम सिर्फ काम लेना नहीं चाहते, हम आपको कंप्लायंसेस के जो प्रॉब्लम्स है उससे बचा रहे हैं, ऐसा कुछ। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी में तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी कोई समाधान है भी नहीं, हमें ही करना है। अब एक आदमी को 5 गार्ड चाहिए, उसने सुलेखा पे डाल दिया, किसी डायल मी पे डाल दिया। जो 5 दिन से कोई टेक्नीशियन या कोई आदमी जाके उसकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता, अपन 15 मिनट के अंदर 10 आदमी पहुंच जाते हैं उसके पास, 10 एजेंसियां। ये कितनी बड़ी बात है? क्या अपने को इतनी थोड़ी भूख, भाई इतनी भूख थोड़ी है अपने को, लेकिन अब क्या करें, सबकी थोट ये है कि मैं लेट हो गया तो मैं वंचित हो जाऊंगा। अब अगले को सामने 10 मिनट में 10 एजेंसी बैठी है, तो वो अपने तो फिर अपने हिसाब से काम करेगा ना। तो उसके मैंने देखा है कि आज क्लाइंट ने बोला शाम तक गार्ड रेडी हैं गेट पे। हाँ, आई हैव सीन दैट मच ऑफ स्पीड, यू नो।
हम क्लाइंट से पूछते ही नहीं है कि भाई आपने इनको टर्मिनेशन दिया है क्या, 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया है क्या, उसका आपने कुछ का पेमेंट का क्लियरेंस दे दिया क्या, हम कुछ नहीं पूछा, हमें तो ये है कि हमें काम मिल गया बस, दैट्स ऑल। अब आपका पेमेंट नहीं मिला, सॉरी यार हम कुछ नहीं कर सकते। अरे तो भाई कल को तेरे भी तो नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा, राइट। तो अब ये तो कमियां तो देखो हमें अपने आप को ही दूर करनी है, अदरवाइज तो कोई सॉल्यूशन नहीं। सब मिले तो कर सकते हैं, कॉमन एग्रीमेंट है। और एक हम लोग ही उसको खराब करे सो, क्लाइंट को खराब करे सो एजेंसी वाली है। अगर मेरे पास कोई करे, एक सुपरवाइजर है, उन्हें नया डाल देता है, एक दुकान नया ऑफिस डाल लेता है, उन्हें मेरा थोड़ा खराब करना स्टार्ट करेगा। कहीं एक कोटेशन दिए, उसके पीछे 10 एजेंसी आ जाएंगे कि उससे कम देने के लिए। अगर हम लोग इफ वी वर्क ऑन ए कॉमन एग्रीमेंट एंड मिनिमम वेज तो करेक्ट है, केरला में अलग रहता, राजस्थान में अलग रहता, तेलंगाना में अलग रहता, कर्नाटका में अलग रहता, मगर एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए हम लोग ऐसा एग्रीमेंट में फाइट करना कि ए मिनिमम वेज जो भी है वो मिनिमम वेज तो भी देना पड़ेगा। एंड व्हाट दीपक पांडे सेड, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो भी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, अगर कोई पीएफ वाले आए फॉर आर्ग्यूमेंट पर्पस, उन्हें बोलेगा आप रजिस्ट्रेशन करें ना, आप ही है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आप है बोल के बोलेगा। रूल बोलता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एजेंसी नहीं होगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा उन्हें। तो हम लोगों को भी पहले सीखना पड़ेगा कि एज ओनर्स हम लोगों भी एजुकेट होना, हम लोगों भी प्रोफेशनलिज्म सीखना पड़ेगा। अगर मैं दाढ़ी नहीं करा एंड सिक्योरिटी गार्ड को जाके अरे तू दाढ़ी नॉट वेल मेंटेन्ड, यू कैन नॉट क्वेश्चन अपने आप पहले। तो ये पूरा सीखेंगे पूरे डिस्कशन में अपने को। एंड एज डिस्कस मोस्ट ऑफ द companies, because I was working with so many facility management companies, these are all common problems. One of the major thing what we need to do, if we stop ये जो भी बाहर के MNC सारे, ये जो भी JLL है, CRB है, जो भी है, वो हम काम कर रहे हैं अपने ऊपर अपने साथ और कमा रहे उन लोग, वो स्टॉप करना बोले तो आपको अपने कॉमन एग्रीमेंट में 5 तारीख या 10 तारीख तक सैलरी आ जाना चाहिए। उसको 60 डेज को मिल जाएगा, उन्हें अपने को 90 डेज करेगा। JLL को आपको 30-40, इसका इतना क्रेडिट नहीं है, फिर भी हम लोग वी आर नॉट एबल टू स्टॉप। क्यों बोले तो सबको काम होना, कंपटीशन में अरे चलो काम चल रहे, हम लोग तोड़ के चले जा रहे, ब्रेक हम लोग रूल्स ब्रेक करके चले जा रहे। अब ट्रैफिक जाम हो जा रहा है एक जगह, हम लोग फिर मुश्किल में पड़ जा रहे कि ट्रैफिक जाम हो गया, कैसा मेरा काम है निकलना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शायद ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। और एक बहुत सारे जने हैं जो भी एक एसोसिएशन है, स्टेट वाइज एसोसिएशन है, सब इकट्ठा करके अभी एक कॉमन इसके अंदर आए तो शायद ही ये जल्द निकल जाए। बिकॉज अपने लिए हम लोग प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं अपने साथ में। द बेस्ट पार्ट इज facility management industry is the highest employment creation in India. हम लोग बहुत 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 बड़ा है। अब आके मोदी जी बोलेगा, ऑफ कोर्स मोदी कोई भी रहने दो, CM रहने दो, PM रहने दो, कोई भी हिसाब बोलेगा ना हम लोग इतना क्रिएट करें एम्प्लॉयमेंट, वो कहाँ से आता मालूम है? एक चीज है वो EPF का, EPF एनरोलमेंट के हिसाब से हम लोग बोल रहे। हाँ ठीक है ओम प्रकाश जी, वो EPF ESA के इन लोग बोलेंगे कि वो क्रिएट कौन कर रहे, हम लोग कर रहे, फिर हम लोग ही पछता रहे। कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी कुछ तो भी तोड़ के कुछ कमा रहे समझो। यही तो यही मोदी जी की कला है सर। यहाँ पे आई पर्सनली थिंक कि पॉलिटिक्स होते रहता है, गवर्नमेंट आती है जाती है। प्राइवेट कंपनीज का एक बड़ा बेनिफिट है कि एंटरप्राइज मॉडल होता है, जहाँ पे प्रॉफिट है, जहाँ पे सेल्स है, हमारा फोकस वहां पे होता है, राइट। अब मैं देखता हूँ US वगैरह में भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जिनके पास 100 से नीचे गार्ड्स हैं, पर वहाँ कंप्लायंसेस टॉप प्रायोरिटी पे आती है। और जितने भी गार्ड्स हैं सब कंप्लायंस वाले हैं वहां पे। आप हम सबको पता है बिना ग्रीन वीजा या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के नहीं जा सकते, राइट। तो वो 100 गार्ड के साथ ही उतनी इनकम कमा लेते हैं जो हम नॉन कंप्लायंस में शायद नहीं कर पाते हैं। वो डॉलर्स में करते हैं, रुपीज में करते हैं, राइट। तो स्लोली ग्रेजुअली वो चीज आएगा, नो डाउट। इंडिया में लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा है,
राइट। और सिस्टम, इसीलिए आदमी सीसीटीवी सिस्टम लगाने से पहले सोचता है कि 2 कार्ड रख लो, सस्ता पड़ता है, राइट। सो दैट इज द बिग चैलेंज। यस, इसमें और क्या डेप्थ में जा सकते हैं? जो मेरा एक्चुअल मोटिव है, ये जो 3-4 प्रॉब्लम निकल के आएंगे आने वाले वीक में, जो नेक्स्ट वीक सैटरडे हम मिलेंगे, उसमें डेप्थ में उसका सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। इट्स नॉट लाइक ओनली हम क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं, सोल्यूशंस। We need to discuss on artificial intelligence, जो भी आने वाले दिनों में सिक्योरिटी गार्ड के बगल में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ तक आ सकता है, हम लोग क्या करना है, अपना कहाँ तक हम लोग उसको चैलेंज ले सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड अपने पास ही एक ग्रुप में एक मैन पावर जो भी सप्लाई कर सकता है, उसको भी ग्रुप में ऐड करेंगे। वी विल हैव ए कॉमन थिंग, कॉमन ड्रेस यूनिफॉर्म सप्लायर। कॉमन यूनिफॉर्म सप्लायर है तो सस्ते में पड़ जाएगा। मैं 1 रुपए में खरीद रहा हूँ, अगर ओम प्रकाश जी को वही 50 पैसे में मिल रहा, अच्छा है, ठीक है। वैसा एक यूनिफॉर्म वाले, एक शू वाले, एक रेनकोट वाले, उन लोगों को भी थोड़ा धंधा मिलेगा और उसको इतना क्लाइंटल मिलेगा कि all these things we need to do because we are on an association, and we need to strongly think that it's only collaboration, not a competitive kind of thing. अगर अपने आप अपने अंदर हम लोग कॉम्पिटिटिव बना लेंगे तो ग्रोथ कभी भी नहीं होगा। वी नीड टू कोलैबोरेट। अगर कोलैबोरेशन में होगा, 1 रुपए आपको भी मिलेगा, 1 रुपए मेरे को भी मिलेगा। अगर कंपटीशन में गए तो तीसरे बंदे आके दोनों से छीके चले जाएंगे। वो जो मंकी स्टोरी बोलते ना बचपन में, वैसा हो जाए। करेक्ट। राधा कृष्ण जी, आपका इस पे क्या व्यू रहेगा, और क्या पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं फॉर फर्दर डिस्कशन? सर ने सही बोला है, श्रीनिवास सर ने सही बोला है। ये टाइम तो कोलैबोरेशन का टाइम है। अभी देखो हर जगह हर बिजनेस का कोलैबोरेशन ही चल रहा है, तो ये अच्छी पॉइंट होगा। और कॉमन परचेज सिस्टम, ये यूनिफॉर्म इक्विपमेंट्स का वगैरह, वो भी ठीक रहेगा। और इंटर स्टेट कोलैबोरेट करके भी हम कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद करते भी कर सकते हैं ऐसा हम, क्योंकि हम अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, ये चैलेंजेस आएगा हमारे पास, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नए नए चीजें आएगा, तो उसका हम कॉमन हम एक प्लेटफॉर्म में आके चैलेंज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा हमसे। तो यही मेरे को बताने के लिए है। केपी सिंह जी, आप हैं ऑनलाइन? यस सर, यस। आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को, आपका नाम, एजेंसी का नाम, लोकेशन, एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 3 बिगेस्ट चैलेंजेस सिक्योरिटी एजेंसी जो फेस कर रही है। मेरी एजेंसी का नाम डॉल्फिन सिक्योरिटी एंड सर्विसेज है। और मैं अहमदाबाद में मोटेरा में ऑपरेट कर रहा हूँ फॉर लास्ट 12 years ऑलमोस्ट। वीडियो आपका ऑन हो सकता है पॉसिबल? I'm trying to do it somehow. There's a small option जहाँ पे एक वीडियो होगा, उस पे क्रॉस होगा। नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay. Yes. So I joined little late, so I'm not aware of what all points we have already discussed. But one point which I think all of us are facing is regarding the. Yes. Just a second. Has the video started? Yes, no. It has. So one point which we are all facing is कि हमारी ड्यूटी होती है 12 घंटे की। ऑलमोस्ट ये नॉर्म हो गया सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, मेजॉरिटी 12 घंटे की। इवन बिग कंपनीज आर गोइंग इन फॉर 12 hours ड्यूटी, वेयरएज कंप्लायंस के हिसाब से 8 घंटे का सारा कुछ करना पड़ता है। अभी नाउ जिसने भी कंप्लायंस किया है वो उसे पता है कि ये कितना मुश्किल है जब एचआर डिमांड करती है आपसे सारे की कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट सारे 8 hours पे बनाइए, वीकली ऑफ के भी डॉक्यूमेंट बनाइए,
how much fudging and all is involved in that. Now, what we can do about this, that is a very serious issue which we are all facing. Now, most of the clients, even bigger clients जो हैं, वो exactly 8 hours पे shift करने के लिए तैयार नहीं है, because it's a financial implication. Weekly off का ये सब करके अगर एक गार्ड का रेट 24-25 हजार 30 हजार रुपये चला जाता है. Exactly, if they give weekly off का मतलब है कि 1/6 ज्यादा गार्ड रखना, 60 गार्ड की जगह 70 गार्ड रखना, all that. But compliance करना है तो मतलब half compliance का कोई मतलब नहीं. It has to be 100% compliance. Correct. So this is a big issue which we are all facing, and we have to look for the solution for this. Second issue, police verification. Okay. सारा के मुताबिक पुलिस वेरिफिकेशन मेरा ख्याल all of us are facing. Migrants guard होते हैं, local police verification का कोई मतलब नहीं उनका. Most guards are from North Indian states like Madhya Pradesh, Bihar, UP, Rajasthan. If you send a request for police verification, it will never come unless the guard goes there and push the things up, pay some money or things like that. Correct. But प्रसारा के मुताबिक police verification जरूरी है. So this is another issue which I would like to mention, which is bothering all of us. Yes. And probably next meeting we can expect some solutions. अभी तो just हमने Yes. Slowly, gradually we'll think of solution also. Yeah, yes. If I am not wrong, this Pasara is going to become online pan-India basis. Right, it is right now. It's already online, but police verification is not online. See, the process is, अगर आप एक स्टेट में है, वहाँ के पुलिस स्टेशन आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है. The document will go to the that security guard का state. Okay. Right. Now we have some 70 lakhs plus security guards all over India. Right. To verify all this force is a big task. And security का police का जो ratio है, compared to like the population India का है जो, वो पहले से कम है. वो इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोलिंग में ही उनका शॉर्टेज है पुलिस का. एंड पुलिस का हर एक स्टेट में जो भर्ती बोलते हैं या फिर जो स्ट्रेंथ है, वो एक्सपेक्टेड जो है उससे बहुत कम है. तो इट्स नॉट पॉसिबल. मे बी सारे चीज को ऑनलाइन कर सकते हैं. नाउ इवन इफ यू कैन वेरीफाई, उसका आधार उनका आपको रेटिना मिल जाता है, फिंगरप्रिंट मिल जाता है, राइट. उनका विलेज का जो वेरिफिकेशन है वो मिल जाता है. तो सम ऑफ द अदर थिंग विल कम आउट. इसमें सोल्यूशन आ जाएगा. एंड अगर हमारे कुछ स्टेट में अगर किसी ने कुछ आइडिया कुछ इनोवेटिव करा है टू वेरीफाई सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी शेयर हो जाएगा आने वाली मीटिंग्स में. अभी फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई एम डूइंग इज आई कैन शेयर विद यू कि हम उसके कंसर्न पुलिस स्टेशन को जो उसके विलेज के जुरिडिक्शन में आता है, वहां के ये को हम एक अपने पैड पे लेटर लिख देते हैं कि provisionally we have recruited this guard. His details are like this. His Aadhaar card is enclosed. Please intimate if anything contrary about his records, in your records, there is any crime recorded in your record. Please intimate. Fair enough. And अपने फाइल में रख देते हैं कि भाई this is what we can do, this is the maximum we can do. Provisionally we have recruited. If there is anything objectionable in your records against this individual, please let us know. Right, we can send this letter by registered post. I think so. Registered post, Indian Post Office का बहुत कम charges है. Luckily, Indian Railway, Indian Post Office very economical. Yeah. And we can have that. हमारे पे जैसे हमारे फाइल होती है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स का बायोडेटा का, compliances का, we can have one verification का फाइल जहाँ पे we have that slip we get na from the post office कि हमने लेटर भेजा है. If anything comes, then we can show that. It's a good practice, very very innovative actually, and very practical also in that sense. Yeah. Yes. Anything else like 12 hours का भी बात हुआ. ये सच पता है कि by law it should be 8 hours. अब by norm बन गया है कि सिक्योरिटी गार्ड 12-12 घंटे के ब्लॉक्स में ही आते हैं. डे होता है, शिफ्ट होता है नाइट.
very few companies work in 3 shifts 8 hours का, right? So ये क्या opportunity है या problem है, या how you people see this? I think even the central government is increase the working hour of offices for 9 hours. So शायद ही ये अनऑफिशियल ऑफिशियल का जो भी इतने सालों से चल रहा, वही एक बड़ा प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी एजेंसी ही क्लाइंट्स को खराब करे। ये 12 घंटा कभी भी नहीं था, पहले दिनों में 8 घंटे का था, फिर 12 घंटे कर दिए। कोई स्टार्ट करे बस एवरीवन कॉपीड दैट। अभी थोड़े एजेंसीज में अगर मैन पावर शॉर्टेज है तो उन्हें 48 आवर्स भी काम करना पड़ रहा बच्चों को। तो एक चैलेंज है, मगर हम लोगों को इसके ऊपर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना काफी मुश्किल होगा। जैसा थोड़े on some cases we can like police verification and all, we can approach the central government, but we need to have a team, we need to have a strong unity among ourselves। अगर अपने साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी है वो स्ट्रांग बने तो आई थिंक we can also have a recovery team। For example, Raju has to get some money from XYZ company, अपने अंदर एक जने जाके we can talk to them, this is not correct, we are from an association। अगर उन्हें अकेला जाके बात करे तो उन्हें बेंच में बैठना पड़ेगा या चेयर पे बैठना पड़ेगा, नहीं तो बाहर रखे। If we are united, the recovery part is one of the biggest challenge for most of the companies। ये बहुत बड़ा challenge है। Very valid। It's a very valid point we need to discuss, and everyone has got their own plan of recovering। तो उन लोग कैसा कर रहे हैं? If we have a good number of discussions, then definitely we'll come out with this। Only will come out the challenges with discussions, right? Probably आई थिंक सो। ओम प्रकाश जी ने भी सेम चीज बोला कि हम जब साइट लेते हैं हम देखते नहीं कि पिछले वाले का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है, तो उसकी भी रिकवरी कहीं ना कहीं रुक गई। हर दिन सुधार की जब हमारा मिनिमम वेज ही नहीं है, जब हम ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, जब हम एक दूसरे को वैसे ही काट रहे हैं, मैन पावर है नहीं, तो आप और कॉम्प्लिकेशंस क्यों बढ़ा रहे हो? ये चीज होगी स्टेट के अंदर एसोसिएशन बने, स्टेट की एसोसिएशन मजबूत होगी तो ये पेमेंट वाला इश्यू है, ये अनऑथराइज्ड एजेंसीज का इश्यू है, मिनिमम वेज का इश्यू है, वहां 10 आदमी को सर एक जैसी भाषा में बात कर रहा हूँ लट लेके खड़ा होगा तो जाके काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमजोर बहुत ज्यादा है। हमने राजस्थान में कुछ शुरू किया है और हमने कई पेमेंट के लिए मैं भी गया हूँ साथ में। हम 10 आदमी जाते हैं तो उसको ये नहीं कहना पड़ता कि आप बाहर बैठो। क्यों बैठे बाहर भाई, तुम आ बाहर इधर। और उसने दिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लोग एसोसिएट होना ही नहीं चाहते। हर आदमी सोचता है यार एसोसिएट हो गया तो मेरा बिजनेस चला जाएगा, जबकि उसको यही पता नहीं कि बिजनेस जाएगा नहीं, बिजनेस बढ़ेगा। 100% राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे है। और जैसे आपने कहा कि चैलेंजेस, आपने बहुत अच्छे से बताया कि चैलेंजेस पहले भी थे, अब भी हैं और रहेंगे आगे चलते। बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, इंप्रूवमेंट हमें अंदर से लाना है। इसीलिए ये फोरम बना है कि आप यू गो इनटू डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम और देखिए। जैसे आप एक सोल्यूशन निकल गया वेरिफिकेशन का, राइट? आप पुलिस के पास क्यों जाएंगे? आपने लेटर दे दिया उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन को, अगर आपने 100 में से 50 को दिया, यू हैव अ सिस्टम, आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इनकम, ये इंडस्ट्री में लायबिलिटी भी ज्यादा है कंप्लायंसेस नहीं करने का, वहां से हमें सेफगार्ड चाहिए। एक सोल्यूशन, अब पेमेंट के ऊपर बात हो रही थी, एक सोल्यूशन हो गया कि हम यूनिटी बना के जाएं, पेमेंट कलेक्ट करें। तो बहुत से लोग, बहुत सारे एसोसिएशन में होता है, बिल्डिंग लाइन में होता है, मटेरियल्स में होते हैं। देयर इज वन मोर सोल्यूशन कि हम एक लॉयर को अपने साथ रखें, वन लॉयर हु टेल्स अस कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड ऑफ द डे एसोसिएशन विल नॉट हेल्प, द लॉ ऑफ द लैंड, द लॉ ऑफ द स्टेट जो भी होगा वो हेल्प करेगा। ही विल गाइड अस कि हाउ टू गेट पेमेंट। मैं कई ऐसे लॉयर्स जब हम इंटरेक्ट करते हैं, और मैं वन ऑफ द मीटिंग में एक लॉयर को भी बुलाऊंगा जो हमें हेल्प करेगा कि कैसे सिर्फ एक लेटर देने से हमारा पैसा रिकवर हो सकता है। कई बार हमारे क्लाइंट्स के चेक बाउंस हो जाते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते, चेक बाउंस का केस है वो कर सकते हैं। रिलेशन बोथ साइड होता है, गिव एंड टेक। अगर आप सर्विस दे ही जा रहे हैं, आपको पेमेंट मिल नहीं रहा है, तो दैट्स नॉट रिलेशन, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज नॉट बिजनेस, राइट? यस राजू जी, हैव सम पॉइंट। जी, हम लोग जब भी ऐसे कर रहे हैं ना सर, कर्नाटका में और पैन इंडिया में,
सम Yes. क्लाइंट से जब कमिटमेंट होता है तो एग्रीमेंट बनाते हैं सर्विस का 1 साल का। राइट। उसमें क्या हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि 1 मंथ जो स्टार्टिंग हम सर्विस लेता है तो फर्स्ट मंथ का हम लोग सैलरी हम बंदे को देंगे। जैसे हम लोग इनवॉइस तो सबमिट करने का लेट होगा और क्लाइंट भी देने का लेट होगा, और हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट मंथ एजेंट्स विल पे द सैलरीज टू एम्प्लॉय। तो हम लोग सेकंड मंथ इनवॉइस सबमिट करने से पहले क्लाइंट हमको चेक देना पड़ेगा। ओके। तो ऐसा हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं अभी यहाँ पे, जो हम एग्रीमेंट पे ऐसे ही बनाया है पूरा क्लाइंट का साथ। ओके। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से कि ये फाइनेंशियल का इशू नहीं रहेगा। तो इसका असर हो रहा है, लाइक क्लाइंट्स आर पेइंग ऑन टाइम बिकॉज़ ऑफ दिस यस एग्रीमेंट? यस यस दे आर डूइंग सर, हम लोग कर रहे हैं ना अभी। तो एग्रीमेंट में ये पॉलिसी किया है, जो फर्स्ट मंथ हम लोग सैलरी पेंगे, सेकंड मंथ इनवॉइस सबमिट करते आप लोग चेक देंगे। तो जैसे हम लोग पे सैलरी करेंगे, नहीं तो वी आर नॉट पेइंग टू सैलरीज टू एम्प्लॉय। ये एक अच्छा चीज है। व्हेनेवर यू फॉर्म अ एग्रीमेंट, हमको नॉर्मली हम क्या बर्डन भी नहीं रहेगा ना सर, जो इतना ये भी नहीं रहेगा। सो बंदे भी 1 मंथ का जो 2 लाख को 3 लाख को भी पेमेंट तो रुक जाए तो फिर बंदे को सैलरी नहीं होंगी। अगर तब 3 महीना 4 महीना हम दे के जाएंगे तो मुश्किल होगा ना हमको। तो कहाँ से लेके आएंगे हम लोग फाइनेंशियल बिल? करेक्ट। अच्छा, एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करा है, हमारा जो कोटेशन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इज सेम फॉर ऑल द क्लाइंट्स, हम चेंज नहीं करते हैं। अगर हम लॉयर से प्रॉपर डिस्कस करें, और जैसा आपने एक लाइन, यू एडेड वन लाइन देयर, अगर हमने वो लाइन पे डॉटेड साइन, डॉटेड्स पे क्लाइंट का सिग्नेचर ले लिया, वी हैव समथिंग रिटन। कल को अगर मुझे उनसे रिकवरी करना है तो भी बता सकता हूँ ये इट्स नॉट अ वर्बल थिंग, ये रिटर्न में है। तो वो भी हमारे सेफगार्ड में काम आ सकता है, राइट? फेयर इनफ। तो एग्रीमेंट आएगा सर, सारा पॉलिसीज एंड लीगल में पूरा आ जाएगा ना सर, एग्रीमेंट में मेंशन करता है। करेक्ट। तो पूरा उन लोग जब पढ़ा के उसमें साइन करता है। करेक्ट। तो ऐसे तो कभी वो नहीं, जो बड़ा बड़ा क्लाइंट ऐसा करते हैं कि 2-3 महीना पेमेंट नहीं देता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा एजेंसी को, सैलरी नहीं दे पाएंगे अपने को, क्यों वो कैपिटल नहीं कर सकता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम लोग 1 मंथ जो सैलरी देता है, सेकंड मंथ इनवॉइस आने सबमिट करने पहले से फर्स्ट मंथ का सैलरी पेमेंट चेक होना चाहिए। तो नहीं तो वी कांट पे द सैलरी बोल के हम लोग एग्रीमेंट में लिख के देता है डायरेक्ट। यहाँ का सर्विस होने तो नहीं होने तो एजेंसी जो चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कैप तो फाइनेंस के लिए तो काम करें, तो पैसे के लिए तो सभी बंदा एम्प्लॉय तो भी सफर हो जाएंगे ना सर। करेक्ट करेक्ट। इस पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफी अच्छा आइडिया है जिसपे और डिस्कस कर सकते हैं। एवरी वीक वी आर मीटिंग, इट्स नॉट वन टाइम मीटिंग वी आर हैविंग। इसको कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। एंड यस, एवरी वीक विल ट्राई कि हम पूरे हफ्ते में मूवीज देखते हैं, न्यूज देखते हैं। लेट्स सिट 1 आवर विथ ओपन माइंड, देखते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग एजेंसी एक ही प्रॉब्लम को कैसे डिफरेंट वे से देखता है, और ट्राई करेंगे कोई सोल्यूशन हमें मीटिंग से मिले, या कोई आइडिया मिले, या मोटिवेशन मिले, राइट? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वी विल गेट एनर्जी। अगर मैं ओम प्रकाश जी से जो तरीके से बात कर रहे हैं, या केबी सिंह जी ने, तो राजू, राधा कृष्णा, अजय सिंह, तो आई एम गेटिंग सम एनर्जी। अगर मेरा थोड़ा धंधा कम है तो भी अरे इतने साथ है मेरे साथ में, so I will have that energy kind of thing. It is always good to network with the it's like a teamwork, sir. Fraternity networking is the first and foremost for business development, right? Yes, ये रिकवरी का जो डिस्कशन हो रहा है, हाँ जी, कैप्सी का एक प्रपोजल है कि हम अपने वेबसाइट में रोग क्लाइंट्स का नाम ये करें, जो भी जिनका पेमेंट फंसा के रखते हैं, जो ये करके रखते हैं। आई थिंक इट कैन वर्क टू सम एक्सटेंट। आई हैव नॉट सीन द वेबसाइट की उन्होंने डाला है कि नहीं, बट ये उनका प्रपोजल आया था कि रोग क्लाइंट्स डिक्लेयर करके उनका नाम दें। They are also asking you to put tomorrow they'll ask you to put all your manpower details, how many of you are and all. Individually we need to fight. अपने जो भी लाइक माइंडेड है अपने पास फाइट करना है। And as Deepak ji well said, we don't get into details of those associations, whether they are good, bad, great or whatever it may be. अपना इंडिविजुअल हम लोग कैसे डेवलप होंगे, that is a main focus and purpose of this group. आज 24 जुलाई को मिले हम लोग, नेक्स्ट ईयर 24 जुलाई को हम लोग कितना खुश है, कितना हैप्पी है, कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है,
वो एक ही देखेंगे. That's what my I think Deepak's motto is this. I don't know about his. Yes, it's same. Like प्योर से बात करते हैं, अपनी इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हैं ओपन होके, तो मुझे लगता है लर्निंग जो 110% ज्यादा होता है, राइट?